Cut run. An inconsistent US approach changes the goalposts. Cut and run. अस्थिर अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार लक्ष्य बदल रहे हैं. And now says it will take another 2 to 3 weeks before he ends the war, leaving the end point and exit strategy unclear. और अब कहते हैं कि युद्ध खत्म करने में 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे, जिससे अंत और बाहर निकलने की रणनीति स्पष्ट नहीं है. योयो ट्रम्प स्ट्रेचेस वॉर. योयो ट्रम्प ने युद्ध को लंबा खींचा. President Donald Trump appeared to vacillate between a cut-and-run withdrawal and an intensified offensive to secure the Strait of Hormuz while delivering two separate addresses on Wednesday, 1 April 2026. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 अप्रैल 2026 को दिए गए 2 अलग-अलग भाषणों में कभी तुरंत वापसी, कट एंड रन, और कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को सुरक्षित करने के लिए आक्रामक अभियान के बीच झूलते नजर आए. During the lunch event, Trump expressed frustration with the pace of the conflict. लंच कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने युद्ध की धीमी गति पर नाराजगी जताई, which has now stretched to 32 days despite his earlier private assurances of a swift conclusion. जो अब 32 दिनों तक खिंच चुका है, जबकि उन्होंने पहले जल्दी खत्म होने का भरोसा दिया था. Recounting a conversation with UK Prime Minister Keir Starmer regarding the deployment of a British aircraft carrier. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के साथ विमानवाहक पोत की तैनाती को लेकर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप said, I told him, the war is going to be over in 3 days. ट्रंप ने कहा, मैंने उनसे कहा, यह युद्ध 3 दिनों में खत्म हो जाएगा. So we don't need to have a 3-week meeting for a 3-day war. इसलिए 3 दिन के युद्ध के लिए 3 हफ्ते की बैठक की जरूरत नहीं है. Just send the ship and let's get it done. बस जहाज भेजिए और काम खत्म कर दीजिए. Addressing the possibility of seizing Iranian energy assets. ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा करने की संभावना पर बात करते हुए The president noted that while the US could take the oil very easily, he was sensitive to domestic pressure. राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका तेल आसानी से ले सकता है, लेकिन वे देश के अंदर के दबाव को भी ध्यान में रख रहे हैं. We could take the oil very easily. We could take it and we could keep it. हम तेल आसानी से ले सकते हैं. हम इसे ले भी सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं. But I don't know if the people in the country have the patience for that. लेकिन मुझे नहीं पता कि देश के लोगों में इसके लिए इतना धैर्य है या नहीं. They want to see it end. वे चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए. People sort of say, just win. Just win. Come home. लोग कहते हैं, बस जीत जाओ. बस जीत कर घर वापस आओ. And I'm okay with that, too, Trump told the gathering. और मैं भी इससे सहमत हूं, ट्रंप ने सभा में कहा. रुपी इन बिग सिंगल डे गेन. रुपया एक दिन में बड़ी बढ़त के साथ. Amid the Iran turmoil, the rupee staged a sharp rebound on Thursday, settling 152 paise higher at 93.18 against the dollar, marking one of its strongest single-day gains in over 12 years. ईरान में चल रही उथल-पुथल के बीच गुरुवार को रुपए में
तेज उछाल आया और यह डॉलर के मुकाबले 152 पैसे मजबूत होकर 93.18 पर बंद हुआ, जो पिछले 12 सालों में इसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त में से एक है। In the interbank foreign exchange market, the rupee opened weaker at 94 rupees and 62 paise but rallied sharply by 188 paise during the session to hit an intraday high of 92 rupees and 82 paise before closing at 93.14, a rise of 1.6% over its previous close. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.62 पर कमजोर खुला, लेकिन कारोबार के दौरान 188 पैसे की तेजी के साथ 92.82 के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंच गया और अंत में 93.14 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद के मुकाबले 1.6% की बढ़त है। The rally unfolded despite surging crude prices above $106 per barrel, weakening Asian equities, and heightened global uncertainty. यह तेजी तब आई जब कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल से ऊपर थी, एशियाई शेयर बाजार कमजोर थे और वैश्विक अनिश्चितता भी बढ़ी हुई थी। गुड कॉप, बैड कॉप। गुड कॉप, बैड कॉप, नरम और सख्त रणनीति। President Trump publicly tethered Vice President J.D. Vance to the success of ongoing negotiations with Tehran, blending levity with a blunt warning regarding the administration's foreign policy legacy. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वांस को तेहरान के साथ चल रही वार्ताओं की सफलता से जोड़ा और हल्के अंदाज के साथ-साथ प्रशासन की विदेश नीति विरासत को लेकर एक सख्त चेतावनी भी दी। The exchange crystallized a good cop, bad cop strategy that has come to define the administration's approach to the Middle East. इस बातचीत ने गुड कॉप, बैड कॉप रणनीति को स्पष्ट किया, जो अब मध्य पूर्व के प्रति प्रशासन के दृष्टिकोण की पहचान बन गई है। Addressing a room of donors and officials, Trump shifted from touting military hardware to the diplomatic portfolio currently held by Vance. दाताओं और अधिकारियों से भरे कमरे को संबोधित करते हुए ट्रंप ने सैन्य ताकत की बात से हटकर कूटनीतिक जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिया, जो फिलहाल वेंस संभाल रहे हैं। JD is working very hard with the intermediaries, the president said, before pivoting to a public ultimatum. राष्ट्रपति ने कहा, JD मध्यस्थों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक अल्टीमेटम, चेतावनी की ओर रुख किया। मुस्लिम नेशंस कंडेम इजराइल्स डेथ पेनल्टी मूव। मुस्लिम देशों ने इजराइल के मौत की सजा वाले फैसले की निंदा की। 8 Muslim majority countries strongly condemned Israel's move to pass a law making death by hanging a default sentence for Palestinians convicted for terrorism in military courts, according to a joint statement released by Pakistan on Thursday. गुरुवार को पाकिस्तान द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार 8 मुस्लिम बहुल देशों ने इजरायल के उस फैसले की कड़ी निंदा की, जिसमें सैन्य अदालतों में आतंकवाद के दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी को डिफ़ॉल्ट सजा बनाने का कानून पास किया गया है। पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतार, Saudi Arabia, and the UAE emphasized the urgent need to refrain from measures that risk further inflaming tensions on the ground. Pakistan, Turkey, Egypt, Indonesia, Jordan, Qatar,
सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कदमों से बचना जरूरी है जो जमीनी स्तर पर तनाव को और बढ़ा सकते हैं। The coalition of ministers warned that the legislation represents a dangerous escalation. इन देशों के मंत्रियों के समूह ने चेतावनी दी कि यह कानून खतरनाक बढ़ोतरी डेंजरस एस्केलेशन को दर्शाता है। वर्क फ्रॉम होम इन मलेशिया। मलेशिया में वर्क फ्रॉम होम घर से काम। Malaysia will implement a work-from-home policy for government employees from 15th April as it seeks to reduce energy consumption amid rising fuel prices linked to the West Asia conflict, PM Anwar Ibrahim said. मलेशिया 15 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करेगा ताकि पश्चिम एशिया के संघर्ष से जुड़े बढ़ते ईंधन दामों के बीच ऊर्जा खपत को कम किया जा सके, ऐसा प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा। The move will apply to employees across ministries, government agencies and state-linked companies. यह निर्णय मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों और राज्य से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होगा। Bankers across Europe have been told to work from home following a threat believed to be linked to Iran, UK-based The Telegraph said. UK के अखबार द टेलीग्राफ के अनुसार यूरोप भर के बैंकरों को भी एक ऐसे खतरे के कारण घर से काम करने के लिए कहा गया है, जो संभवतः ईरान से जुड़ा माना जा रहा है।